students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back here with another lecture of animal classification. Student, as you know, in animal classification we have already discussed about the criteria for animal classification. We have understood what is body symmetry, what is grade of organization, what is segmented body, what is not segmented body. Now student, on the basis of your new criteria for animal classification, there are altogether 10 phylums, out of which phylum Protozoa is a unicellular organism which we are not about to study. From today onwards, we will be completing about next 10 phylums, our remaining phylums starting from Porifera. Students, today we will firstly discuss about Porifera and then we will cover all the 10 phylums as well. Now students, let us start up with phylum Porifera. What is Porifera? The word itself will give you a brief explanation about himself. Pori means pores and fera means bearing. Any organism that have pores on their body can be considered as a Porifera. Porifera word का मतलब होता है pores bearing. तो here I am going to write down Porifera as pores bearing. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं. ओके बेटा, और इसी की वजह से इनको स्पॉन्ज भी बोला जाता है. आपने स्पॉन्ज देखा होगा ना बच्चा, उस पर छोटे ढेर सारे होल्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्पॉन्ज. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज कि इनका जो नाम आने का रीज़न था वो ये था कि इनके बॉडी में ढेर सारे छोटे पोर्स हैं. ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट सेल्स हैव बीन नॉट येट कन्वर्टेड इनटू टिश्यूज. सेल्स जो है अभी तक टिश्यू नहीं बन पाए. दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ वेरी सिंपल बॉडी प्लान. इनका बॉडी प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल है. तो लेट अस सी हाउ डज दे लुक. तो बेटा हम जो है यहाँ पे अपना फाइलम पोरीफेरा का एक ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज अ साइकॉन स्पॉन्ज उसको ड्रॉ कर रहे हैं. ओके बच्चा, तो ये हमारे पास साइकॉन और यू कैन कॉल इट एज अ स्पॉन्ज आ गया. अब अगर हम इसके बॉडी को देखें तो इसके बॉडी पे वेरी स्मॉल पोर्स आर गोइंग टू बी सीन. ओके स्टूडेंट्स, देर आर गोइंग टू बी अ न्यूमरस पोर्स थ्रू आउट द body, but there are two types of pores. The one which I am drawing is a smaller pore and the one which is present at the top. The pore which is present at the top is known as a osculum. बेटा जो ऊपर की तरफ पोर प्रेजेंट है एक बड़ा सा, उसका नाम है osculum, और जो साइड में पूरे बॉडी में छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं ostia. तो पहला पॉइंट हम बात कर लेते हैं बेटा. आई हैव रिटन सेवरल पॉइंट, वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस एनिमल हैव अ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान. इवन दो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, देयर बॉडी इज वेरी सिंपल बिकॉज अभी तक टिश्यूज भी नहीं बने हैं, ऑर्गन्स का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो बॉडी बड़ी सिंपल सी है. दे हैव अ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. बेटा हम इनको स्पॉन्जेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके बॉडी में बहुत सारे छोटे पोर्स होते हैं, एज दे बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, क्योंकि इनके बॉडी में ढेर सारे पोर्स होते हैं. बेटा व्हाट आई कैन सी हियर इज पोर्स आर ऑफ टू टाइप. As I told you earlier, smaller pore is known as a ostia and the larger one, bigger one is known as a osculum. What they usually do is, student, from ostia they does the intake of food. That means food intake, ingestion is taking place from ostia. Whereas student, from osculum what they does is they remove their food, whatever is not required. So here I can write down from ostia there is intake, okay, and from osculum there is elimination of something which is not required in our body. Ostia is a smaller pore
and from that smaller pore beta they does the intake of a food. Osculum is a larger pore and through which the food gets eliminated. अब होता ये है बेटा, सारे pores से खाना ऑस्टिया के अंदर आता है, whatever is required is consumed, बाकी सब ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला जाता है. ये पहला पॉइंट हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम इनके हैबिटाट के बारे में बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे कहाँ पे. बेटा ये ऑर्गेनिजम्स आपको पानी के अंदर मिलेंगे. दो दैट मीन्स दे आर एक्वेटिक. ये एक्वेटिक है. सारे बेसिक ऑर्गेनिजम्स मोस्ट प्रोबेबली बेटा एक्वेटिक ही होते हैं और ये भी एक्वेटिक है. दे आर एक्वेटिक एनिमल्स बट ज़्यादातर दे प्रिफर टू स्टे इन अ मराइन वाटर. मतलब हमें ये मराइन वाटर्स में ज़्यादा मिलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं. तो दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्टली मराइन. मोस्ट ऑफ देम आर मराइन and few are freshwater dweller. I hope you are understanding. These animals are aquatic, mostly marine and few are freshwater dweller. We have discussed first point, we have discussed about second point. Now moving ahead, let us talk about locomotion. When you look in the body, they have a very bulgy body and there is no organ which can help out the locomotion. So usually they do not show locomotion. इनके बॉडी में लोकोमोशन नहीं होता है बेटा. ये एक सबस्ट्रेट पे, किसी चीज़ पे इनकी बॉडी क्या होती है, अटैच हो जाती है. जैसे ये हैंड है, इसके ऊपर अटैच, तो ये अब यहीं पे रहेंगे. अगर सबस्ट्रेट मूव हुआ तो ये भी ऑटोमेटिकली मूव करेंगे. अदरवाइज ये खुद लोकोमोशन शो नहीं करते हैं. दे डू नॉट शो लोकोमोशन. ये लोकोमोशन नहीं शो करेंगे. They do not show locomotion and are always attached to substratum. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होते हैं बेटा, ये अटैच्ड होते हैं. And that's why we are going to call them as a sedentary. कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकी हुई हो एक जगह पे, उसको हम sedentary बोलते हैं. Sedentary means stop, एक जगह पे रुका हुआ है. ओके बच्चा. Now students, after that if I see their body, they have a very soft body as well. So there has to be some sort of protection or their body is supported. That means their body have some support from spines. इनके बॉडी में छोटे छोटे ढेर सारे स्पाइन्स होते हैं. ओके बच्चा. और ये स्पाइन्स जो है ये क्या होते हैं, दे हैव अ स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी एंड दैट spine is either made up of a calcium carbonate or it is made up from silica. So my next point is body is supported by spines. इनकी body जो है वो spine से supported है. They are made from, जो spines हैं वो बने हुए हैं either from calcium carbonate or silica. Now students, let us try to understand what does they eat. तो बच्चा ये जो पानी के अंदर हैं ये खुद तो लोकोमोशन करते नहीं है कि अपना खाना ढूंढने जाएंगे. होता ये है पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, उनके ऊपर ये अपने आप को फीड करते हैं. तो ये सिर्फ एनिमल्स को नहीं खाते, पानी के साथ साथ इनके बॉडी में कुछ एक्वेटिक लाइफ भी चली जाती है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, और फिर वो उन्हीं स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और बाकी जो वाटर है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो दे फीड देमसेल्फ ऑन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी विच इज कैरीड आउट बाय वाटर, जो वो पानी के थ्रू अपने बॉडी में क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं. तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज दे फीड देमसेल्फ ऑन अ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर. इनके बॉडी में पानी के साथ ही हमने क्या किया है, इसको ले लिया है. Now question arises reproduction. Yes. तो बच्चा अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे. अब सेक्सुअल कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस इट हैज़ टू बी अ फर्टिलाइजेशन. तो अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो असेक्सुअल में देयर आर वेरियस मेथड आउट ऑफ विच बेटा ये मोस्टली बर्डिंग शो करते हैं और इनके पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी एबिलिटी है. तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली. इन asexual reproduction budding is performed
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट दे डज स्टूडेंट्स, दे डज अ बर्डिंग. दिस एनिमल्स or animals belonging to this phylum have a very good ability of a regeneration, और इनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की. Now moving ahead students, let us see कि हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें से असिमेट्रिकल है कि नहीं है, एसिलोमेट है या डिप्लोब्लास्टिक है. तो बेटा इफ आई लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म आई कैन सी कि मैं किसी भी प्लेन से ट्राई कर लूँ, दो इक्वल हाफ मुझे नहीं मिलेंगे. तो माई पॉइंट शुड बी दे आर असिमेट्रिकल. ये कैसे हैं बच्चा, असिमेट्रिकल है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दे आर असिमेट्रिकल. नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूँ मैं बेटा, तो हम लोग बात कर लेते हैं सीलोमेट की. तो इनके बॉडी में कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होगी एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी अ एसिलोमेट. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो दे हैव अ सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो ये सारी पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. बेटा आपको क्राइटेरिया बहुत अच्छे से देखना है बिकॉज दिस थिंग विल रिपीट इन एवरी नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें जो है वो समझ में आ गई है. नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक अप that their body. Now look at here. Now what happens students, this is a side cells which they have, and in the center they have some empty space which is known as a spongocele. बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं spongocele. और spongocele के साइड में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल एंड दिस सेल इज गोइंग टू बी नोन एज अ कोलार सेल. हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलार सेल बोलते हैं. तो ये ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल होता है और उसी सेल को कोलार सेल बोला जाता है. ये इनके बॉडी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है विच इज रिटन एज दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल कॉल्ड एज अ कोलार सेल. यही रहा स्टूडेंट्स आपके पॉरीफेरा के बारे में. लेट अस क्विकली रिवाइज. इनके बॉडी में पोर्स हैं. पोर्स दो तरह के हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम. ये जो है ज़्यादातर मराइन वाटर में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर्स में रहते हैं. लोकोमोशन जो है सेक्सुअल भी है और एज वेल एज असेक्सुअल भी है. असेक्सुअल में दे प्रिफर बर्डिंग बट दे ऑल्सो हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ अ रीजनरेशन. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दे डू नॉट लोकोमोट. ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं शो कर सकते. ये एक ऑब्जेक्ट पे अटैच्ड होते हैं. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो ये लोकोमोशन शो करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ ये लोकोमोशन शो नहीं करेंगे. अब इसके बाद हमने देखा कि इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है. बॉडी असिमेट्रिकल है, असिलोमेट है और साथ साथ में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर है. तो बेटा अभी तो हमने ये देख लिया, बट क्या होता है ना व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल दी 10 फाइलम्स तो एट सम पॉइंट यू गेट कंफ्यूज्ड. तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रहे फाइलम के लिए, उसके लिए हम कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स यूज़ करेंगे. बट बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको वो छोटे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इसको ईजिली याद कर सकते हो. Okay students, so I hope you are done. So I am going to erase my this part from where I can explain you कि हम इसको आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं और एग्जाम्स में अगर हमें confusion होगा तो this trick will help you a little bit student. I am saying little bit, all the points are almost not possible to cover but yeah 90% जो है वो बच्चा cover हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है पॉरीफेरा. यू विल राइट डाउन एज पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, FERA, पॉरीफेरा. और इस पॉरीफेरा के हेल्प से हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको क्या करेंगे,
जिसके हेल्प से हम ये पूरे फाइलम को स्टूडेंट याद करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड जो पोरीफेरा में से पी है, दैट विल रिमाइंड मी अबाउट पोर्स। ये बताएगा कि इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट हैं। ओ से बच्चा आपको याद रखना है, पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स सच एज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। दो तरह के पोर्स हैं, एक ऑस्टिया है और दूसरा ऑस्क्यूलम है। तो यहाँ से वी कैन राइट डाउन अ फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ दिस एनिमल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पोर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्स, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया इज अ स्मॉलर पोर एंड ऑस्क्यूलम इज अ लार्जर पोर। वो बेटा हम वहाँ से पढ़ चुके हैं। आर से आप याद करो इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। बेटा जब आप इनके रिप्रोडक्शन के बारे में याद करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होगा और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होगा। असेक्सुअल में बच्चा बर्डिंग होगा और इसके साथ साथ होगा रीजनरेशन। तो वी विल राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट फॉर रीजनरेशन। हमने जब इनके हैबिटेट के बारे में बात की तो वी हैव सीन दे आर मोस्टली एक्वेटिक। बट बच्चा एक्वेटिक में भी ये ज़्यादातर हमें मराइन वाटर में मिलते हैं और कुछ जो है हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो यहाँ से आप याद कर लो कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल। ए से याद कर लो कि ये एक्वेटिक होते हैं। और आर से यू कैन अंडरस्टैंड दे हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये वर्ड ई है, इससे आप इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया जो है ये एग्जाम्पल है इस फाइलम पोरीफेरा का। बेटा एग्जाम्पल्स पे बहुत प्रेफरेंस दी जाती है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। तो आपने पोरीफेरा से समहाउ बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। आपको लिखना है पोरीफेरा CMSS है, पोरीफेरा CMSS है। इसका मतलब क्या है बच्चा? पोरीफेरा CMSS का मतलब है कि पोरीफेरा के पास कोलार सेल है। C से यू विल अंडरस्टैंड कोलार सेल। M से आपको याद रखना है ये मल्टी सेल्यूलर है। इनकी बॉडी एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनी हुई है। बेटा S से याद कर लो कि इनके बॉडी में ढेर सारे स्पाइंस प्रेजेंट है। और S यहाँ पे याद कर लो कि ये सेडेंटरी होते हैं, मतलब नो लोकोमोशन। और है से यू हैव टू रिमेंबर एज हर्माफोडाइट। बेटा ये हर्माफोडाइट क्या होते हैं? जो बाइसेक्सुअल होते हैं ना, उसी को हम हर्माफोडाइट बोलते हैं। दे आर बाइसेक्सुअल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन अ सेम body, and that time we are going to call it as a hermaphrodite. Student, this is a very small trick with the help of which at least you can frame 5 to 6 point. Let us try कि हम इसे कैसे फ्रेम करेंगे. पहला पॉइंट हमने पोर्स का देखा कि Poriferans are pores bearing animals, so they have a numerous pores on their body. Pores are of two type, ostia and osculum. Ostia is a smaller pore, osculum is a larger pore that we have seen. Students, थोड़ी चीज़ें आपको अपने तरफ से add on करनी पड़ेंगी. इसके बाद बच्चा आप पोर्स डिस्कस कर लोगे ना, तो हैबिट वो कहाँ पाए जाते हैं वो पॉइंट डिस्कस करो. ये ऑर्डर ना फॉलो करके आप ये फॉलो करोगे देन ऑल्सो फेयर इनफ, बट अगर आप अपना जो हमने पहले लिखा था वो ऑर्डर फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर है. तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर. फिर आप बोल दो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी है और असेक्सुअल भी है. असेक्सुअल में बर्डिंग होता है और इनके पास यूनिक एबिलिटी है जो है रीजनरेट करने की. फिर आपके पास पता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट है जिसको हम कोलार सेल बोलते हैं. अगेन दे आर स्टूडेंट्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है. स्पाइंस आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी टू गिव देम अ सपोर्ट. दे आर सेडेंटरी, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू शो no locomotion, no
लोकोमोशन, और लास्ट में आपने लिखा पॉरीफेरा CMSS है। ऐसे यू हैव टू रिमेंबर कि ये हर्माफोडाइट होते हैं। हर्माफोडाइट होते हैं दैट मीन्स दे आर बाइसेक्सुअल, एंड बाइसेक्सुअल मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सेम बॉडी पे प्रेजेंट होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फाइलम समझ में आ गया होगा और आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा जिसके थ्रू आप इसको लिख सकते हो। फाइलम को क्या याद रखना है बेटा, आखिर में पॉरीफेरा CMSS है और इसके थ्रू आप CMSS के थ्रू सारी चीज़ें लिख सकते हो। ये हमारे पास डायग्राम रहा। हमने इसके साथ साथ पढ़ा कि इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने एक्वेटिक लिखा है, अगर वहाँ पे आप असिमेट्रिकल और एसिलोमेट भी क्या कर सकते हो बेटा, ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो 3 बार आ रहा है। पॉरीफेरा में आपके ए के 3 मतलब हैं, एक्वेटिक भी है वो, एसिमेट्रिकल भी है और साथ साथ में वो जो है एसिलोमेट है, मतलब बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं है। बेटा जैसे हमने आज पॉरीफेरा कंप्लीट किया है उसी तरह से हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बाकी के 10 फाइलम्स भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के 4-5 फाइलम्स को याद करने के लिए मैं कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी। बाद के फाइलम्स ऑलरेडी बहुत इजी होते हैं बिकॉज हमने उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार देखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट होता है और उसी के साथ साथ हमारे आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have liked my lecture. Thank you and keep watching my lectures.